A very sweet good morning, everyone. Today in EVS, our chapter 13 is going on My Country. We will write down hard words, word meanings, and one word answers of this chapter. So let's start. We will start from hard words. So number one is national. 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 Number two, country. 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 Number three, symbols. 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 Number fourth word is anthem. 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 Number fifth word is celebrated. 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 Number sixth, festivals. Sorry, not festival. Independence. 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 Number seventh, republic. 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 Number eighth word I am going to write here. Became. Number eighth, Became. Became. Number ninth word, birthday. 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 And last, number 10 is festivals. 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 So these are hard words given in this chapter. Let's take a look once again. Number one है national. 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 Country. Country. Symbols. Symbols. Anthem. Anthem. Celebrated. Celebrated. Independence. Independence. Republic. Republic. Became. Became. Birthday. Birthday. Festivals. Festivals. So these are hard words, and now I am going to write here word meanings. Only three word meanings are there. So let's write word meanings. After hard words, you will write down word meanings. Word meaning. So number one is entire. Entire. Entire means होता है whole. Entire country celebrate national festivals ना, तो entire means होता है whole country, पूरी country. So entire means whole. 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 Number second word is here nation. NATION. Nation means होता है country. 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 And number third word is festivals. FESTIVALS. Festivals means special days. Special days. So these are three word meanings here. Let's revise once again. Entire means होता है whole. WHOLE. Whole means पूरा. Nation means country where we live. थर्ड है फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स मीन्स होते हैं स्पेशल डेज दैट वी सेलिब्रेट विद अवर फैमिली, विद अवर कंट्री. ओके, सो दीज आर हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट वन वर्ड आंसर्स. Now we will write down one word answers. Many one word answers are given there in this chapter. So number one, I am going to, after word meanings, you will draw a partition line. Then you will start one word answers. One word answers. So our question first is, I am not going to write question. मैं यहाँ सिर्फ heading डाल रही हूँ, main topics डाल रही हूँ. जैसे नंबर वन है नेशनल बर्ड.
National. National bird. Our national bird is peacock. First, I am going to write all the topics. National bird. Number 2, national anthem. National. National anthem. National song. National song. National animal. National animal. National tree. These all are our national symbols. National tree. National currency. National currency. And next है national flower. National. National flower. National bird. बर्ड हो गया. नेशनल एनिमल हो गया, नहीं हो गया. नेशनल फ्रूट हो गया, नहीं फ्रूट नहीं हुआ. नेशनल फ्रूट. National. नेशनल फ्रूट. Now I will write their answers. So you have read the chapter now, and in this chapter all these national symbols are given. So national bird is peacock. 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 Our national bird is peacock. National anthem is Jana Gana Man. Jana, 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 Gana, Gana, and Mana, Man. Jana Gana Man is our national anthem, and our national song is Vande Matram. Vande Matram. This is our national song. Vande Matram. Next, national animal. Royal Bengal tiger. Royal Bengal tiger. इसको रॉयल बंगाल टाइगर क्यों कहते हैं? अभी तक आप लोगों ने सिर्फ टाइगर पढ़ा हुआ है ना, और नेशनल एनिमल इज टाइगर. अब यहाँ आप पढ़ रहे हो रॉयल बंगाल टाइगर. इसको रॉयल बंगाल टाइगर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ही कंट्री में एक वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसमें पाए जाते हैं. वहां बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते हैं. सबसे ज्यादा टाइगर वेस्ट बंगाल में ही मिलते हैं. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रॉयल बंगाल टाइगर. नेक्स्ट है हमारा नेशनल ट्री. इट्स बैनियन ट्री. BANYAN. Banyan tree. Next, national currency is our rupee. Rupee, and this is the symbol of our national currency. National flower, lotus. Lotus. And last one, national fruit is mango. 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 So ये हो गए हमारे national symbols. Let's revise once again. National bird, peacock. National anthem, Jana Gana Man. National song, Vande Matram. National animal, Royal Bengal tiger. National tree, banyan tree. National currency, rupee. National flower, lotus. National fruit, mango. अभी और भी बहुत सारे symbols हैं. So let's write them. नेक्स्ट है हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल स्वीट, नेशनल स्पोर्ट. सो यहाँ नेशनल तो मैंने लिखा हुआ है, नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग. नेक्स्ट है आवर नेशनल स्वीट, नेशनल स्वीट फ्लैग, और नेशनल स्पोर्ट. सो नेशनल फ्लैग है हमारा ट्राई कलर, दैट इज कॉल्ड तिरंगा ऑल्सो. नेशनल फ्लैग को हम तिरंगा भी बोलते हैं ना. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ट्राई कलर. ट्राई कलर, एंड यू विल राइट हियर तिरंगा ऑल्सो. इन ब्रैकेट राइट डाउन तिरंगा. तिरंगा भी बोलते हैं इसको.
और ट्राई कलर भी बोलते हैं। नेशनल स्वीट इज जलेबी, जलेबी इज अवर नेशनल स्वीट एंड अवर नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी, HOCKEY। So these are our national symbols that represents our country, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वही होते हैं ना नेशनल सिंबल। आपने चैप्टर रीड किया है। नेशनल सिंबल क्या होते हैं? नेशनल सिंबल्स आर द साइंस दैट रिप्रेजेंट आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नेशनल सिंबल्स हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेशनल सिंबल्स। तो ये हमारे नेशनल सिंबल्स हो गए। आफ्टर दैट वन प्रैक्टिस असाइनमेंट इज ऑल्सो गिवन हेयर चैप्टर 13 में। यहाँ आपको ये बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ कुछ एक्सरसाइज तो जो मैंने नेशनल सिंबल्स लिखवाए हैं उसी की दी हुई है। सो लेट्स टेक अ लुक। ड्रॉ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड कलर इट। इन योर नोटबुक यू विल ड्रॉ योर नेशनल फ्लैग एंड यू विल कलर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो एक्सरसाइज ए में तो आपको नेशनल फ्लैग ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। नेक्स्ट है नेम 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हेयर इन दिस बॉक्स, इन दीज ब्लैंक्स यू हैव टू राइट योर नेशनल फेस्टिवल्स। इन दिस चैप्टर यू read about 3 national festivals na. One is Gandhi Jayanti, second is Republic Day, and third one is Independence Day. So you have to write all these national festivals here. नेक्स्ट है आंसर इन 1 word और few words। या तो 1 word में आंसर करना है या few words में, more than 1 word में लिखना है। तो यहाँ ये नेशनल सिंबल्स ही दिए हुए हैं। जैसे व्हाट इज आवर ट्राइकलर फ्लैग नोन एज। हमारा जो ट्राइकलर फ्लैग है, झंडा है, उसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सी आई राइट हेयर, तिरंगा। आवर ट्राइकलर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा, उसको तिरंगा भी बोलते हैं। सेकंड है विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल इज अवर रॉयल बंगाल टाइगर। थर्ड है विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग इज अवर वंदे मातरम। नंबर 4th है व्हेन वाज गांधी जी बोर्न। यू रीड इन द चैप्टर गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 October 1869। When did India became independent? इंडिया इंडिपेंडेंट कब बना था? मतलब हमारा इंडिया आजाद कब हुआ था? इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947। आप चैप्टर खोल के देखना, एवरीथिंग इज गिवन इन द चैप्टर। नेक्स्ट है व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। सो वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th January। ओके, ये हो गया हमारा 1 word आंसर। नेक्स्ट है लेट्स लर्न मोर अबाउट आवर कंट्री इंडिया। फाइंड आउट आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। सो आई एम हियर टू हेल्प यू। लेट्स रिवाइज दिस। नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री ना, एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो यू विल राइट डाउन हियर दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है राइट 2 more नेम्स ऑफ इंडिया। आपको याद होगा जब मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया था तो मैंने इंडिया के और भी नाम बताए थे। जैसे इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान, भारत, ये सब भी हमारी कंट्री के नाम है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ हमें मोर 2 नेम्स लिखने हैं, तो यू कैन राइट हियर भारत एंड हिंदुस्तान। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच यू लिव। चैप्टर में आपके मैप दिया हुआ था ना, आपने वो मैप को स्केच ट्रेस किया था और उसमें एक्टिविटी भी थी कि कलर द स्टेट इन विच यू लिव। तो यहाँ भी आपको वहां आपने कलर किया था, यहाँ आपको अपने स्टेट को लिखना है। यू हैव टू राइट हियर योर स्टेट नेम इन विच स्टेट यू लिव। नेक्स्ट है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, दीज आर द मेन पर्सन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री को रन करते हैं। जैसे स्कूल का एग्जांपल लेके देखो, स्कूल को मेन लीड कौन करता है? स्कूल को हु इज द हेड ऑफ द स्कूल? प्रिंसिपल सारे रूल्स बनाते हैं और प्रिंसिपल ही स्कूल को स्मूथली रन करते हैं ना। इसी तरह हमारे इसमें कंट्री में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर 2 मेन पर्सन होते हैं, दोज रन आवर कंट्री स्मूथली, जो हमारी कंट्री को स्मूथली चलाते हैं।
So here you have to write down our president name and prime. The Prime Minister of India is Mr. Narendra Modi and President of our country is Mr. Ramnath Kovind. ठीक है? So let's write their name in the given blanks and paste their picture also. You can find the pictures from magazines, any magazine and from newspaper also. Newspaper में इनकी बहुत सारी pictures, बहुत सारी news आती है. So from there you can cut their pictures. Next है हमारा write 2 or 3 lines on Mahatma Gandhi. Here you have to write 2 or 3 lines on Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, where he was born, और कहाँ उन्होंने क्या किया. सो महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन. हमारी कंट्री के फादर भी कहते हैं उनको. ही वॉज बोर्न ऑन 2 October 1869 एंड ही वॉज बोर्न एट पोरबंदर, गुजरात. And he was a great man. He was a great freedom fighter also. So do this practice assignment in your book also and write the given work in your notebook. Thank you.